Yes, sir. And my presentation is visible or not? Yes, sir. It is visible. Visible. Okay. Now, before going to discuss about today's session, I want to know about the last lecture. What we already done or discussed in last lecture? Anybody? हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? Anyone? Sir, we have done the some examples regarding directional derivative. Yes, we have done some examples of directional derivative. Okay, and we discussed the concept of directional derivative in last lecture. Okay, anyone say about the what we discussed already in this unit up to today? आज तक हमने कितना डिस्कस किया ये यूनिट में कोई बता सकता है वन बाय वन? आई सर वांट टू नो. यस. हमने देखा है वेक्टर, स्केलर, यस, गुड. वेक्टर, Dromil. यूनिट Vectors, वेक्टर, scalar, unit vector, good. डॉट प्रोडक्ट, Dot product, very good. वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, Yes, टेंजेंट वेक्टर, yes, नॉर्मल वेक्टर, yes, component of velocity vector and component of acceleration vector, very good. the vector differential operator, Vector differential operator, very good. gradient and directional derivative. Very good, Dromel. Okay. Yes, हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट स्टडी कर लिए. ओके, वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस में अप टू टुडे. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ आवर यूनिट. ओके, थैंक यू Dromel. Okay, next यूनिट नंबर 4. ओके, वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने यहाँ तक इतना किया है, लेकिन लास्ट लेक्चर में वी reached at orthogonality. Okay, orthogonal. Yes, am I right? ये डिस्कस नहीं किया था ना लास्ट लेक्चर में? No, sir. बाकी. ओके, यहाँ तक शायद किया था हमने. दिस Yes. एग्जाम्पल वी हैव डन. ओके. Yes, sir. Okay. Now look at here. Orthogonal. Orthogonal of two surfaces. How we can define? Two surfaces are said to be orthogonal if there is two different criteria. You can use any one from this. Two surfaces are said to be orthogonal. Number one, if and only if corresponding tangent vectors are perpendicular at point P. Okay. And second one, corresponding normal vectors are perpendicular at point P. That means if you want to find the or if you want to check the two surfaces are orthogonal or not, so you go through two different methods. Number one, you go with the tangent vectors or you go with normal vectors. Okay, if you find the tangent vectors of two surfaces and if both are perpendicular to each other, then you can say that the two surfaces are orthogonal. In same way, if you find the normal vectors of the surfaces, both the surfaces, and if you check both are perpendicular, then you can also say that the two surfaces are said to be orthogonal. Understand? Any doubt in this definition? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, thank you. Okay, now look at this example. Find the value of constant a and b. We want to find the value of a and b so that the surface ax square minus zby equal to a plus 2x. This is first surface will be orthogonal to the surface. This is second surface 4x square y plus z cube equal to 4 at 1 minus 1 2. तो दिस इज अवर P. ओके, जो हमको पॉइंट दिया है उसको हम P बोल देंगे. तो ये P पॉइंट पे ये दोनों ऑर्थोगोनल है ऐसा हमको दिया गया है. नाउ वी वांट टू फाइंड द कांस्टेंट ए एंड बी. ए एंड बी की वैल्यू हमको फाइंड करना है कि ए एंड बी हम क्या लेंगे तो ये दोनों ही दोनों ऑर्थोगोनल हो जाएंगे एट पॉइंट P 1 minus 1 2. दैट इज द एग्जाम्पल. ओके, नाउ हाउ वी कैन फाइंड द A and B? Anyone? Any idea?
कौन से रास्ते से जाएंगे तो इजी रहेगा, कोई बता सकता है? So P and Q वाली मेथड वापरीશું આપણે. P and Q मीन्स જે રીતે લાસ્ટ સમમાં કરેલું ને આપણે. लास्ट सम में हमने क्या किया था, देखो लास्ट सम तो ये था ना, एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट दिया था, इसीलिए उसका टेंजेंट इजीली मिल गया था। लेकिन इसका टेंजेंट आपको फाइंड करना है तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जाना पड़ेगा। फर्स्ट सर सेमेस्टर, पहले फाइव, सॉरी सर दोनों का पहले ग्रेडियंट फाइव, फाइव, हाँ फाइव ग्रेडियंट फाइंड करना होगा ना, Yes, मतलब a yes. प्लस टू इंटू एक्स वो कांस्टेंट है तो वो इक्वल टू की उस साइड जाएगा ना। यस आप सही है, आप 70% तक नज़दीक पहुंच गए हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो हम टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अगर टेंजेंट से किसी को जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट सेमेस्टर की मेथड आपको याद होना चाहिए कि फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल। ओके, आता था ना वहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन में, यस याद? सर। हाँ, तो वहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई आपको फाइंड करना था और दूसरे को जी ऑफ एक्स वाई, दोनों का टेंजेंट फाइंड करो। किस तरीके से फाइंड कर रहे थे हम? एनीबडी? डेल एफ बाई डेल एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू डेल एफ बाई डेल वाई डिवाइड बाय, है ना, वही था ना, वो नॉर्मल था। और अगर आपको फाइंड करना था टेंजेंट तो उसके लिए क्या करते थे हम, एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई माइनस वाई जीरो इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड माइनस जेड जीरो इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो। एम आई राइट? ओके, उस तरीके से आपको इसका फाइंड करना पड़ेगा टेंजेंट। लेकिन अगर आपको वेक्टर कैलकुलस के थ्रू में जाना है तो बेस्ट मेथड कौन सा है, ग्रेडियंट। ओके, क्योंकि ग्रेडियंट इज द नॉर्मल टू द सरफेस। ओके, वो हमने स्टडी किया है। एम आई राइट? यस सर। ओके, तो हम सेकंड डेफिनेशन, सेकंड कॉन्सेप्ट से जाएंगे कि दोनों ही दोनों नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर है तो हम उसको ऑर्थोगोनल बोल सकते हैं। ओके, फर्स्ट से हम नहीं करेंगे टेंजेंट वेक्टर क्योंकि वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, एंड दिस वन इज आवर related to our vector differential calculus, so we go with the normal vector. Okay, so first we define f of x y z, g of x y z equal to 4x square y plus z cube minus 4, and we say p 1 minus 1 2. Okay, तो यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाउ वी डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर। हम क्या करने जा रहे हैं वही हम डिफाइन करेंगे। नाउ वी वांट टू we know that two surfaces are said to be orthogonal if and only if corresponding normal vectors are perpendicular at point P. हमने यहाँ पे टेंजेंट के बारे में नहीं बताया, क्यों? क्योंकि वी आर नॉट गोइंग थ्रू टेंजेंट, इसलिए यहाँ पे हमने नहीं डिस्कस किया। अब हम नॉर्मल से जा रहे हैं तो हम इसका जो नॉर्मल मिलेगा F वाला फर्स्ट सरफेस का, उसको बोलेंगे N1 बार, एंड सेकंड वाले सरफेस को हम बोलेंगे N2 बार। और वो दोनों परपेंडिकुलर है, वो कैसे चेक करेंगे? तो N1 बार इंटू N2 बार क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी? जीरो। यस, दोनों का डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो। ओके, तो हम उसका यूज करके हम ए एंड बी फाइंड करेंगे। डन। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, N1 बार फाइंड करना। स्टेप नंबर 2 होगा हमारा N2 बार फाइंड करना एट पॉइंट P। ओके, और उसके बाद ये इक्वेशन का यूज करके हम फाइंड करेंगे ए एंड बी। अंडरस्टैंड? एनी डाउट अबाउट दिस? नो सर। ओके, तो फर्स्ट वी वांट टू फाइंड द N1 बार। तो N1 bar is equal to gradient of f is equal to del f upon del xi plus del f upon del yj plus del f upon del zk. Now you know that how to find the gradient. Okay, so replace f. f क्या था हमारा, ax square minus zby minus a plus 2x. ओके, उसको मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है, ax square minus zby minus ax minus 2x. I replace it here. Again I replace it here, and again I replace it in z component. Okay, now if you differentiate this surface with respect to x, then what we get? with respect to x करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो यहाँ पे देखो 2 आगे आ जाएगा, that means 2ax. okay, माइनस b with respect to x करना है तो टोटली 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे x नहीं है। माइनस a इंटू एक्स है तो माइनस a इंटू 1 उसका डेरिवेटिव
-2 into x है तो -2, so this is your first component. With respect to y करेंगे तो this will be 0, this will be 0, this will be 0. Now we get only minus zb. Y differentiation of y with respect to y is 1, so minus zb is there. And same way you can find the differentiation, partial differentiation with respect to z. So this will be 0, this will be 0, this will be 0. Now we get only minus by. Okay, so any doubt up to here? No, sir. Okay, now at point, अब कौन सा पॉइंट दिया था? P हमारा था 1 minus 1 2, so we go with that point 1 minus 1 2. So del f at 1 minus 1 2 is equal to, if you replace x is equal to 1, y is equal to minus 1 and z is equal to 2, then you get this equation. That means a minus 2, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा. That means 2a minus a means a minus 2i minus 2. 2 means due to z, so minus 2bj minus plus, because y is minus 1, so minus plus bk. Okay, this is your n1 bar at 1 minus 1 2. Okay, now we go for n2 bar. Same way you can define the n2 bar for g, second surface. Okay, for z, so n2 bar equal to gradient of z equal to del z by del xi plus del g by del yj plus del g by del zk. If you differentiate it with respect to x, you get 8xy. Okay, because you are x square, so 2 into 4, that means 8xy I. With respect to x, this will be 0, this will be 0 due to constant. Okay, del by del y, so here you get 4x square, this will be 0 and this is also 0. Now differentiate with respect to z. So first term will be 0. Differentiation of z cube will be 3z square. Third term will be 0. So this is your n2 bar at any point. Okay, general hai ye. Now if you define the n2 bar at 1 minus 1 2, so we get x is equal to 1, y is equal to minus 1 and z is equal to 2. So we get minus 8i plus 4j plus 12k. Okay, you can easily find it. Okay, so this is nothing but n2 bar at point 1 minus 1 and 2. Okay, done? यहाँ तक कोई confusion? Anybody? No, sir. No, sir. Okay, now what we have, look at here, we have both are orthogonal. Okay, so due to definition या फिर from definition n1 bar into n2 bar is equal to 0 we have. Okay, जो हमारे पास है वो यही एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि ये दोनों का नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर है. Okay, so we go with this. Okay, since both normal vectors are perpendicular at P, we have n1 bar into n2 bar is equal to 0. Now substitute the value of n1 bar at 1 minus 1 2. So we have a minus 2i minus 2bj plus bk. Okay, same way n2 bar at 1 minus 1 2 we have minus 8i plus 4j plus 12k. If you do dot product of these two vectors, we get minus 8 into a, so minus 8a plus 16. 16 कहाँ से आया? Minus 8 into minus 2. Yes, minus 8 into minus 2, that means plus 16. Okay, and I into I means 1 minus 2b into 4, that means minus 8b, j into j 1, bk into 12, that means b 12b, k into k1 equal to 0. Now if you see here, minus 8a plus simplified, so minus 8 plus 12 will be 4b plus 16 is equal to 0. So here 4 is common in each term, so we have minus 2a plus b plus 4 equal to 0. Understand? So this is one equation from n1 bar into n2 bar is equal to 0. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ भी वैल्यू नहीं है, हमको a भी नहीं मिला, b भी नहीं मिला. अब क्या यूज करेंगे हम? एनी डाउट?
अप टू हियर? नो सर। ओके, अब व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप? हमारे पास इक्वेशन आ गया लेकिन वैल्यूज नहीं आई, तो हम क्या करेंगे? ये बहुत ही समझने की बात है, हाँ, क्योंकि यहाँ से आपको थोड़ा सर केयरफुली वो हैंडल। सरफेस जो दिया है ना, हाँ, गुड। उसके अंदर जो जो ये पॉइंट है उसकी वैल्यू डालेंगे तो दोनों को इक्वेट करेंगे फिर। या अगर आप देखेंगे तो दोनों सरफेस पे, है ना, ये पॉइंट तो कॉमन रहेगा ना, P। तो दोनों सरफेस पे वो P तो उसके सरफेस के ऊपर ही है ना, तो वी कैन यूज इट। मीन्स अगर वो सरफेस के ऊपर नहीं है तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं था ना, क्योंकि हमको ऑर्थोनॉर्मल मिलेगा ही नहीं क्योंकि उसके ऊपर नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको दिया है कि P इज ऑन दैट सरफेस, तो इट शुड बी सेटिस्फाई दैट सरफेस। दैट मीन्स वो उस सरफेस में आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पर भी वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो व्हाट वी गेट इफ यू सब्स्टिट्यूट 1 - 1 2 इन F, ये हमारा F है ना, उसके अंदर में जो P को अगर रिप्लेस करूं तो मुझे क्या मिलेगा? देखो, व्हाट वी गेट, a + 2b - a - 2 = 0। चेक इट, हाँ, इसको चेक कर लेना, अगर नहीं आ रहा है तो टेल मी, आई विल डिस्कस। ओके, चेक, अगर आप ये चेक करो तो a + 2b - a - 2 = 0 हो गया। ओके, क्योंकि उसका सेटिस्फेक्शन करना चाहिए, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो दैट इज नॉट ऑन दैट सरफेस। ओके, सो यहाँ पे 2b - 2 = 0 बिकॉज a विल बी कैंसल आउट। सो 2b - 2 = 0, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो b = 1 मिल गया। तो ये हमारा एक इक्वेशन था, है ना। अब दूसरा हमको मिला b की वैल्यू, b = 1। ओके, अब ये दोनों को क्लब करेंगे, मीन्स b = 1 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो व्हाट वी गेट, a हमको मिल जाएगा, दैट मीन्स -2a + b + 4 = 0। सो -2a + 1 + 4 = 0 एंड वी गेट a = -5/2। सो हमको b मिला 1 एंड a = 5/2। तो जब भी a = 5/2 एंड b = 1 होगा तब ये दोनों सरफेस ऑर्थोगोनल एट पॉइंट P होंगे। अंडरस्टैंड? एनी डाउट इन दिस एग्जांपल? नो सर। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? नो सर, नो डाउट। नो डाउट? ओके, ये थोड़ा ध्यान रख के आपको सॉल्व करना है कि जब भी आपको इस टाइप का एग्जांपल पूछा जाए तो आपको ग्रेडियंट से जाना है, नॉर्मल टेंजेंट से जाए, सॉरी नॉर्मल से जाना है। अगर आप टेंजेंट से जाएंगे तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे एक्स वाई जेड डायरेक्शन है, तो यू हैव नो आइडिया अबाउट द 3 डायमेंशनल टेंजेंट। ओके, सो वी हैव टू गो थ्रू नॉर्मल्स। ओके, सर एक तो बार वो लास्ट स्टेप वापस बताएंगे, कौन लास्ट सा? वाला। ये वाला? हाँ वो, हाँ वो ऊपर वाला हाँ, इक्वेशन क्या था, वो कैसे आया सर? ये a + 2b हाँ वाला, दिस वन। हाँ 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 ओके, सर। हाँ, ओके, तो सब्स्टिट्यूट 1 - 1 2 × F। ओके, तो यहाँ पे देखो, चलो मैं थोड़ा इसको ओके इरेज कर देता हूँ, है ना। ओके, ओके सर, ओके सर। हाँ, अब a = 1 - 1 2 इसमें रिप्लेस करो तो क्या मिलेगा? देखो, a × 1 माइनस ZBY, दैट मीन्स 2, Z2 है तो 2 × -1 दैट मीन्स प्लस 2b, है ना, माइनस a -2 × 1, सो -2 = 0। अब = 0 इसीलिए आया क्योंकि ये पॉइंट ये सरफेस का सेटिस्फेक्शन करेगा। ओके, मीन्स ये सरफेस के ऊपर है, अगर उसको वो पॉइंट को ऊपर है तो उसको 0 बनना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? इसलिए वहां पे हमने 0 रखा। गॉट इट? यस सर। ओके, सो यहाँ पे a कैंसल हो जाएगा, सो -2b - 2 = 0, सो वी गेट b = 1। सर यस, सर हमने वो n1 × n2 = 0 जो हमने डिफाइन किया, तो वो सिर्फ प्रूव करने के लिए था कि वो दोनों ऑर्थोगोनल, वो दोनों परपेंडिकुलर हैं। नहीं, प्रूव करना नहीं था, हमको दिया ही है विल बी ऑर्थोगोनल। ओके, मीन्स a एंड b की कौन सी वैल्यू के लिए ऑर्थोगोनल होगा, तो हमको पहले एज्यूम तो करना